Now, these virgins that did not get the Holy Spirit, you remember, the only thing they lacked was oil in their lamps. Is that right? The Bible said the oil symbolizes the Holy Spirit. That's the reason we anoint the sick with oil and so forth, because it's a symbol of the Holy Spirit. अब इन कुंवारियों को पवित्र आत्मा नहीं मिला। आपको याद है, उनके पास केवल एक चीज की कमी थी कि उनके दिए में तेल नहीं था। क्या ये सही बात है? बाइबल ने कहा तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यही कारण है कि हम तेल से बीमारों का अभिषेक करते हैं और इत्यादि, क्योंकि यह पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Now, and then if the Holy Spirit did not come upon them, they did not have it, and then when it come, they said, now to the virgins that did have the oil, said, अब और तब यदि पवित्र आत्मा उन पर नहीं आया तो उनके पास यह नहीं था, और फिर जब वो आया तो उन्होंने कहा, अब कुंवारियों के पास जो तेल था, कहा, you see, they were back in the church age. There were some of them in there that was good people, but they wasn't in the starlight. What I mean, with the wick dipped into the oil. See, and it was out. It was gone out. They'd separated themselves. आप देखना, वे पहले जो कलीसिया युग में थे, वहाँ उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अच्छे लोग थे, लेकिन वे उस तारे के उजाले में नहीं थे। मेरे कहने का जो अर्थ है, वो बत्ती तेल के अंदर डूबी होती है। देखो, और यह बाहर थी, वह बाहर निकल गई थी। उन्होंने खुद को अलग कर दिया था। Paul said in his day they separated themselves from us, seemingly not having the faith. See, went away from us. They went out from us because he wasn't of us. पौलुस ने अपने दिन में कहा, उन्होंने खुद को हमसे अलग कर लिया। ऐसा दिखाई देता है कि उनके पास विश्वास नहीं है। देखो, और उनसे दूर चले गए। वे हमसे बाहर चले गए, क्योंकि वे हम में के थे ही नहीं। Now, it started back in that early Ephesian age and comes on down into this age today. Same thing. Every one of those ages, what happened in them, lapped over into these ages down here. We're going to get into that deeply in a little while. अब यह उस आरंभ के इफिसियो युग में शुरू हुआ और वहां से लेकर आज इस युग में से होते हुए आ रहा है। वही चीज उन हर एक युगों में जो उनके साथ घटित हुआ, जो यहाँ इन युगों पर आगे बढ़ता है। हम थोड़ी देर में उस पर गहराई में उतरने जा रहे हैं। Now, notice that this virgin, she went into where there was weeping, wailing, and gnashing of teeth. अब ध्यान दें कि यह कुंवारी, हालांकि वो वहां चली गई जहां रोना, कहरना और दांतों का पीसना था। Let me say this, my precious, loving friend. Because usually at the church here, when I come here, I just come here and have a healing service and pray for the sick and out across the country somewhere. But this is the time I've been telling you a long time, put your conscience in your pocket. Now we want to come and be honest and true with one another because we're at the last day. Yes. मुझे यह कहना है मेरे बहुमूल्य मित्रों, क्योंकि आम तौर पर यहाँ कलीसिया में जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं बस यहाँ आकर और एक चंगाई की सभा को करता हूँ और बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ और बाहर के देशों में कहीं भी जाता हूँ। लेकिन ये वो समय है, मैं आपको काफी समय से बताते आ रहा हूँ, अपने विवेक को अपनी जेब में रखें। अब हम आकर और एक दूसरे के साथ ईमानदार और सच्चे बने रहना चाहते हैं, क्योंकि हम अंतिम दिन में हैं। जी हाँ। And that's where you precious Nazarenes and pilgrim holiness under sanctification fail. See? Now, did you know Judas Iscariot lived right up to that same place? Amen. Judas believed on the Lord Jesus as Savior, accepted Him as Savior. अब यही है जहां आप बहुमूल्य नाजरीन और पिलग्रिम होलीनेस जो उस पवित्रीकरण के नीचे हैं, चूक गए हैं। देखा? अब क्या आप जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ठीक उस स्थान तक रहा था? यहूदा ने प्रभु यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। And he also was sanctified. He was sanctified in John 17:17 when Jesus said, Father, sanctify them through the truth. Thy word is the truth, and he was the word. All right. और उसे भी पवित्र किया गया था। वह पवित्र हुआ था यूहन्ना 17:17 में, जब यीशु ने कहा, पिता उन्हें सत्य के जरिए से पवित्र करे। तेरा वचन सत्य है और वो वचन था। तो ठीक है।
In Matthew 10, they were given power to heal the sick, raise the dead, cast out devils. They went out into all parts of the country and cast out devils and come back rejoicing and shouting and praising God. मत्ती 10 में उन्हें बीमारों को चंगा करने, मुर्दों को जिलाने, शैतानों को बाहर निकालने की सामर्थ दी गई थी और वे राज्यों के सभी भागों में चले गए और शैतानों को निकाला और आनंद मनाते हुए, चिल्लाते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए वापस आने लगे। And Jesus told them, do not rejoice because that the devils is subject unto you, but rejoice because your names are on the book of life. Is that right? And Judas was with him. Judas was with him. But that's a year and 6 months before Jesus was ever crucified. और यीशु ने उनसे कहा, आनंद मत मनाओ क्योंकि वे शैतान तुम्हारे अधीन हैं, लेकिन आनंद करो क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की किताब पर है। क्या यह सही है? और यहूदा उनके साथ था, लेकिन यह 1 वर्ष और 6 महीने पहले की बात है, इससे पहले यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाए। Now, then, when it comes to Pentecost, for Judas to receive the Holy Ghost and so forth, he showed his colors. He denied Jesus and become a traitor to him. अब फिर जब यह पेंटिकॉस्ट की बात आई, यहूदा को पवित्र आत्मा को पाने के लिए और आदि, तो उसने अपना रंग दिखाया, उसने यीशु को इनकार कर दिया और उसके लिए एक विश्वासघाती बन गया। That's just exactly where that spirit come right up through Luther, Wesley, brought that church up to sanctification with the virgin life, pure, clean, holy, nice, finest people you ever met. But when they go to speaking in tongues and receiving the Holy Ghost, the Nazarene, Pilgrim Holiness, Free Methodist, them says that's the devil. और बस बिल्कुल वहीं पर जहां वो आत्मा आता है, ठीक वहां पर लूथर में से होते हुए वेस्ली में से उस कलीसिया को पवित्रीकरण तक लाया, जो कुंवारी का जीवन है, शुद्ध, साफ, पवित्र, भले, बहुत ही अच्छे लोग जिनसे आप अभी तक मिले होंगे। लेकिन जब यह वहां आता है, जब वे अन्य जुबान में बोलते हैं और पवित्र आत्मा को पाते हैं, नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस, फ्री मेथोडिस्ट, तब वे कहते हैं यह तो शैतान है। And right then when you blaspheme the Holy Ghost and shut yourself off forever. For whosoever speak a word against the Son of Man shall be forgiven, but whosoever speaks against the Holy Ghost shall never be forgiven. और ठीक इसके बाद जब आप पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं और अपने आप को हमेशा के लिए अलग कर देते हैं, जो कोई भी मनुष्य के पुत्र के विरोध में एक शब्द भी बोलता है, उसे क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन जो कोई भी पवित्र आत्मा के विरोध में बोलता है, उसे कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। Remember, all the disciples spoke in tongues. Jesus Christ died on the cross speaking in tongues. So if you can't deal with them here, be friendly with them here, what about over there? These are devils, so was them. याद रखें, सारे चेलों ने अन्य जबान में बात की थी। यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो अन्य जबान में बोल रहा था। इसलिए यदि आप यहाँ पर उनके साथ व्यवहार को नहीं कर सकते हैं, उनके साथ यहाँ मित्रता पूर्वक नहीं हो सकते, तो वहाँ पर क्या करेंगे? उनके लिए यही ये शैतान है, वैसे ही वे शैतान थे। So you see that word showed his color? There comes that virgin, clean as the rest of them, pure lives. I'll take the old-fashioned Nazarene, Pilgrim Holiness churches who really believed in sanctification. You can't lay a finger on their lives. Clean as they can be. It's a good thing that we'd all live like that. It's right, you have to. So आप वहाँ पर देखते हैं जहाँ इसने अपना रंग दिखाया, वहाँ वो कुंवारी आती है, उन बाकी के जैसे साफ शुद्ध जीवन। मैं पुराने फैशन के नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस के कलीसिया को लूंगा, जो वास्तव में पवित्रीकरण में विश्वास करते थे। आप उनके जीवन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, वे उतने ही साफ हैं जितने वे हो सकते हैं। यह एक अच्छी बात है कि हम सभी इसी तरह से जिए। यह सही है, आपको ऐसा जीना है। We know we got a lot over in Pentecostals as impersonators. That's true. Amen. But just as long as you see a bogus dollar, you know that was made off of a good one, a real one. That's right. अब हम जानते हैं कि वहाँ हमारे पास बहुत से पेंटिकॉस्टल के जैसे नकल करने वाले लोग हैं। यह सही बात है,
लेकिन जब तक आप बस एक नकली डॉलर को देखते हैं, आप जानते हैं कि ये एक असली की नकल से बना हुआ था। यह सही है। And there's a real Holy Ghost, a real one who speaks in tongues and shows signs and wonders, and it's been since Pentecost down. So we have to have the impersonators. और वहाँ एक वास्तविक पवित्र आत्मा है, एक वास्तविक जो अन्य जुबान में बोलता है और चिन्ह और अद्भुत कार्य को दिखाता है, और यह ऐसा पेंटिकॉस्ट से लेकर रहा है। इसलिए हमारे पास ये होने के लिए नकल करने वाले होना है। We have to have an evil woman that's no good to make a real woman shine out. We have to have a nighttime black darkness to show the sunlight is glorious. That's right. हमारे पास एक दुष्ट महिला होना है जो अच्छी नहीं है कि एक सच्ची महिला की चमक को दिखाने के लिए। हमारे पास एक रात का समय होना है, घोर अंधेरा, यह दिखाने के लिए कि धूप महिमा में है। यह सही है। You have to be sick to enjoy good health, and it's a law of pro and con, and it's always been and always will be as long as time is. Now, so that's where the church moved itself up. और आपको बीमार होना है ताकि अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें, और भले और बुरे का एक नियम है, और यह ऐसा हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा जब तक समय है। अब तो वही है जहाँ कलीसिया अपने आप में ऊपर बढ़ते गई। Now, didn't Jesus say that in the last day in Matthew 24 that the two spirits would be so close alike until it would deceive the very elected if it was possible? अब क्या यीशु ने यह नहीं कहा कि अंतिम दिनों में मत्ती 24 में कि दो आत्माएं इतनी नजदीक एक जैसी होंगी, इतना तक यह संभव हो तो बिल्कुल चुने हुए लोगों को भरमा देगी। But he who is chosen from the foundation of the earth has eternal life. Eternal life, you cannot get rid of it. It's eternal as God is. You can more cease to exist than God can cease to exist. लेकिन वो जो पृथ्वी की नींव डालने से पहले चुना गया था, उसके पास अनंत जीवन है। अनंत जीवन, आप इससे छूटकर नहीं जा सकते। ये अनंत है जैसे परमेश्वर है, और अब आप अस्तित्व में नहीं रह सकते, तब परमेश्वर अस्तित्व में रह सकता है। That's right, because you're a part of God. You're son and daughter of God. Your life has been changed and you are part of God. You have eternal life. Oh, I love Him, don't you? यह सही है क्योंकि आप परमेश्वर के भाग हो, आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या हो। आपका जीवन बदल गया है और आप परमेश्वर के भाग हो। आपके पास अनंत जीवन है। ओह, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्या आप नहीं करते?